Assalamu alaikum students. Today we will continue our chapter Physiography of India, and in that we have already completed Himalaya, North Indian Plain, and we will start the peninsula. I have already started the peninsula, so we will continue with this, and I will try to revise it again. What is the peninsula? The exact definition of peninsula is the area which is surrounded by three side sea, okay, three side sea water, okay. See India, okay, India, this side Arabian Sea, this side Bay of Bengal, and this side, okay, Indian Ocean. It has three direction, okay, water, and one direction is the land, okay, mainland, so this, okay, portion is called as peninsula of India. Got it? Yeah. Where is Indian peninsula? It is south of the North Indian Plain. This is the North Indian Plain, south of it, okay. The south of North Indian Plain is this portion. So this is the Indian peninsula. Got it? And it touches the Indian Ocean. Here, it touches the Indian Ocean. Start from here and it touches the Indian Ocean. What it carry? It carry plateaus and hill mainly, okay. Plateaus, this is the Deccan Plateau, the ranges are the Western Ghat, and all these things it carry. Because see, the color is, dark color is over here, and the green color is the plain area. Here, the green color and the shaded area, the plain area. And the dark color, orange color, here you can find the orange color. Sorry, okay. Yeah, see, the orange color you can find, okay. Okay, it is around 4500, yeah, and the light yellow color is 3000 in the index. See, this orange color, it means it is the high area, it is the heighted area, it is low area, it is heighted area. Mostly this area is called as plateau, and it is have hills in it, okay. It has hills in it, and it is carrying plateaus. So Aravali is in the north, okay, of this peninsula. This is the Aravali range, okay. This is the north part, Aravali ranges, the oldest mountain plateau, it includes the series of plateau bordering the plain. So these, okay, there are many plateaus, okay, they are bordering the plain. The plain side is bordered by this plain, okay. Bundelkhand is there, Marwar plateau is there, okay. These all are bordering the plain, North Indian Plain, and below that, okay, south part of it, it is Indian peninsula, okay. Vindhyas and Satpura range in the central part and hilly region of the eastern and western Ghat. This is the Vindhya range, okay. This is the central part of Indian peninsula. Vindhya range, and this is the Satpura range. It is important, okay. You should note it down. Yeah, you can see Vindhya range and Satpura range, okay. Now it is visible, and you see, okay, this side, this is the eastern side, okay. It has Eastern Ghat, okay. See here, Eastern Ghat is written over here, and this is the Western Ghat, okay. This is the Western Ghat, Ghat is the hilly region, okay. It is bordering the western part of peninsular region. पेनिनसुलर रीजन उसका वेस्टर्न पार्ट क्या है, वेस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न पार्ट ईस्टर्न घाट है, और सेंट्रल पार्ट में क्या है, विंध्या रेंज, है ना, विंध्यास रेंज एंड सतपुड़ा रेंज आ रहे हैं सेंट्रल पार्ट में. रेंज है, मतलब रेंज मतलब माउंटेन्स कंटिन्यूअस है, ओके. Now we have to do the, in your textbook, okay, you have certain number of question and we have to solve that question on this map. Why I am using this? Because you will understand, okay, map better. You have ebook that I sent to your class teacher. Your class teacher might have share with you ebook, okay, the online book which is available, textbook of geography available. You take the help, okay, question is available over there in the textbook, or you can ask from 10th standard boys, okay, to give you books. Now, what is the question? In which direction do the Aravali lies? है ना, Aravali किधर है? Okay, it is the which direction of India? It is the west direction, ना. Aravali is here. It is in the west direction of India, है ना. West is here. What is the answer? See, everyone can guess. The answer is the northwest, okay, है ना, the north part and the west side of India.
the north and west part. Okay, northwest direction of India, the Aravalli range lie. This is the Aravalli. Okay, you got it. तो इसको हमेशा याद रखने का कि अरावली रेंज किधर है, नॉर्थ वेस्ट में। और आप जितना हाउ मच प्रैक्टिस यू विल डू, इट विल बी इजी फॉर यू। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही बिल्कुल याद नहीं होगा, जम्बल हो जाएगा। तो ट्राई टू मेमोराइज वेयर इज अरावली रेंज और ट्राई टू प्ले गेम, है ना। चलो क्या होता है कि बच्चे लोग के साथ गेम खेलते हैं या भाई बहन में गेम खेलते हैं ना। अभी क्या बच्चे लोग लूडो खेल रहे तो टाइम पास हो रहा है। तो क्या करने का कि एक सर्टन ये करने का, मैप लेने का, जैसे इंडिया में हाँ ये चीज़ किधर है, ये चीज़ किधर है, फाइंड करो, है ना। यू कैन प्ले दिस टाइप ऑफ गेम एट योर होम, है ना, समझे। ऐसा गेम भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन बीच टू रिवर। वाटर डिवाइड मतलब ये ऊंचा पहाड़ है ना, बीच में पहाड़ है, ऐसे देखो बीच में पहाड़ है, ओके, है ना। ये इधर और ये बैक साइड में, है ना। अगर ये तो क्या हो रहा है, पार्टीशन हो गया ना, बैरियर हो गया ना, बैरियर हो गया। अभी सपोज इधर पीछे साइड में रिवर है और ये साइड में रिवर है, अब ये दोनों रिवर नहीं मिलेगा, है ना, ये दोनों रिवर नहीं मिलेगा, तो ये पार्टीशन हो रहा है ना। जैसे रोड के बीच में बैरियर होता है, एक साइड से पानी व्हीकल सारे, दूसरे साइड से व्हीकल जा रहे, तो बीच में बैरियर है ना। तो क्यों डालते हैं बैरियर, ताकि आपस में कोलाइड ना हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो, है ना। तो अरावली भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कौन से माउंटेन को, है ना, कौन से माउंटेन को डिवाइड कर रहा है, क्लियर, है ना। दीज टू माउंटेन, ओके, लूनी एंड चंबल, ओके। लूनी माउंटेन इधर फ्लो हो रहा है पानी, वाटर इज फ्लोइंग इन द अरेबियन सी, है ना। और चंबल माउंटेन इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये गंगा में जाके पानी गिराएगा चंबल, ठीक। तो ये दोनों के बीच में अरावली क्या कर रहा है, वाटर बैरियर है ना। इसका लूनी का पानी इधर नहीं जाएगा, इसका इधर पानी इधर नहीं जाएगा, मतलब ये एरिया में बारिश होगा तो लूनी में ओके वाटर फॉल होगा, और ये एरिया में बारिश होगा, ओके, रेनफॉल होगा तो चंबल में पानी गिरेगा, है ना। और ये कौन करवा रहा है, क्योंकि पार्टीशन कौन कर रहा है, ये अरावली रेंज। अरावली रेंज मतलब माउंटेन रेंज है, ओके। अरावली माउंटेन का नाम है जो कि राजस्थान के एरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेटू टू द ईस्ट ऑफ अरावली, है ना। उसमें कौन कौन से हिल्स है, केयरफुली देखने पड़ेगा एकदम, कौन कौन से हिल है, ओके, ईस्ट ऑफ द अरावली, अरावली के ईस्ट में। अरावली का ईस्ट कौन सा है, दिस पार्ट, यस, दिस पार्ट इज द ईस्ट पार्ट एंड दिस इज द वेस्ट पार्ट ऑफ अरावली, है ना। यहाँ पे कौन कौन सा हिल्स, ओके, यू कैन फाइंड, कटारी हिल, ओके, कटारी हिल इट इज गिवन, बट ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या, नॉर्थ में होना चाहिए, अरावली के नॉर्थ में दिखा रहा है, वो ईस्ट तो नहीं है, तो शायद यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक होगा, क्योंकि ये नॉर्थ में, अरावली के नॉर्थ में ना, ईस्ट में, तो ईस्ट में बोले तो इधर होना चाहिए था। तो कटारी हिल इज इन द नॉर्थ, ओके, बट यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, तो टेक्निकल मिस्टेक हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस विच स्टेट हैज डेक्कन प्लेटो स्प्रेड, ओके, दिस इज द विच स्टेट हैज डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो किधर किधर फैला हुआ है, कौन कौन से स्टेट इंडिया के, ओके। विच आर द स्टेट, कैन यू नेम द स्टेट ऑफ इंडिया, देखो इंडिया के स्टेट का नाम बताने का है ना। विच स्टेट इट इज, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, नो दिस इज तेलंगाना, दिस इज द आंध्रा, दिस इज महाराष्ट्र, है ना। इतने सारे स्टेट है यहाँ पे, ये नाम क्लियर होगा। अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेट में है, तो ये सारे स्टेट में जिसमें मैंने नाम लिया उस सारे स्टेट में डेक्कन प्लेटो, ओके, द सी इट इज स्प्रेड इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, है ना, एंड तेलंगाना, ये सारे स्टेट में डेक्कन प्लेटो स्प्रेड है ना। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच हिल रेंजेस लाई टू द वेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो के वेस्ट में, ओके, डेक्कन प्लेटो इज दिस वन, ओके, यहाँ पे डेक्कन प्लेटो ये पूरा है, इसके वेस्ट में, इसके वेस्ट में कौन से प्लेटो है, कौन से हिल्स है, तो ये शायदरी हिल्स है ना। यहाँ पे दो, ओके, दो नाम है शायदरी हिल का, ओके, शायदरी हिल, ओके, शायदरी हिल देखो, इट इज यहाँ पे देखो इसका नाम लिखा हुआ है, दिस इज द शायदरी हिल के वेस्ट में, डेक्कन प्लेटो के वेस्ट में है।
enumerate the characteristic of वेस्टर्न घाट. अब वेस्टर्न घाट उसमें फिजिकल में नहीं. ओके वी हैव रेड. अभी वेस्टर्न घाट बहुत इंपॉर्टेंट, ओके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है. ये महाराष्ट्र एरिया का या अपने इंडिया के वेस्ट का रेनफॉल कंट्रोल करता है वेस्टर्न घाट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने का. ये हमेशा टेक्निकल टर्म्स आते रहेगा. अगर आप टुडे यू आर लर्निंग वेस्टर्न घाट, आपको समझ में आता है तो इट्स ईजी फॉर यू, क्योंकि हमेशा ये रिपीट होते रहेगा वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे. ओके व्हाट इज द वेस्टर्न घाट. सी द ये ब्लू कलर का जो ब्लिंकिंग हो रहा है ना, क्लियर है ना, ये ब्लू कलर का ब्लिंकिंग हो रहा है, ये वेस्टर्न घाट है. और ये मैप में भी आता है. ओके मैप में बनाने के लिए वेस्टर्न घाट बनाओ तो आप ऐसे बना सकते हो. ओके सी इट केयरफुली. इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर है ना, गुजरात के पास स्टार्ट होता है और केरला ओके के एंड में जाके मिलता है ना. ये ज़्यादा ओके विड्थ तो ज़्यादा नहीं है बट इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है. लेंथ बहुत ज़्यादा है. नॉर्थ से साउथ देखेंगे तो 1600 किलोमीटर है ना. और वेस्टर्न कोस्ट इंडिया की जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है समुद्री किनारा है ना, उसके पैरेलल है. साथ साथ इधर ये ऐसे तो नहीं जा रहा है, ये साथ साथ जा रहा है ना. इधर इधर वेस्टर्न कोस्ट इधर है. यस ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है. माउंटेन चेन, ये क्या वेस्टर्न घाट क्या बोलते हैं, माउंटेन चेन है ना. माउंटेन कंटिन्यूअस जा रहे हैं, कंटिन्यूअस जा रहे हैं. ओके कंटिन्यूअस माउंटेन कंटिन्यूअस जा रहे हैं. ऐसे माउंटेन ऐसे 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 माउंटेन जा रहे हैं बहुत दूर तक, तो उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, कंटिन्यूअस माउंटेन चेन को. आप जाओ यहाँ पर से स्टार्ट करो, खारघर से देखो स्टार्ट करो, नॉर्थ साउथ की तरफ जाओ, आपको पहाड़ मिलते जाएगा. पहाड़ मिलते जाएगा है ना. आप पुणे नहीं जाओ तो देखो आपको पहाड़ी मिलेगा, कंटिन्यूअस पहाड़ मिलती है ना. तो डैट इज़ द माउंटेन. ये कंटिन्यूअस चलते जा रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं, केरला तक है. तो दिस इज़ द वेस्टर्न घाट. दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. ऐसे हमें कैरेक्टरिस्टिक इन्यूमरेट करने का, बताने एक्सप्लेन करने का. ओके अनदर कैरेक्टरिस्टिक इन द नॉर्थ ओके दैट इज महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, दीज माउंटेन रेंज आर रिफर्ड एज सह्याद्री है ना. ये माउंटेन रेंज जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज, सर ये सह्याद्री क्या नाम है ये. तो सह्याद्री महाराष्ट्र और कर्नाटक में बोलते हैं है ना. एनामली हिल किस में बोलते हैं, साउथ में. केरला में एनामली हिल बोलते हैं. जैसे है ना कांदा का नाम आप यूपी वाले कुछ और बोलते हैं, महाराष्ट्र क्या बोलते हैं, कांदा बोलते हैं ना, कांदा पटाटा बोलते हैं ना. वहाँ पे ऑनियन पटेटो बोलते हैं, आलू प्याज बोलते हैं. तो रीजनल वाइज क्या होता है, नाम चेंज होता है, एरिया वाइज नाम चेंज होता है. इसी तरह यही माउंटेन को सह्याद्री का नाम जो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में क्या है सह्याद्री बोलते हैं. और एनामलीज किसको बोलेंगे, साउथ में, मतलब केरला में बोलेंगे, साउथ में एनामलीज हिल बोलेंगे. तो डोंट गेट कंफ्यूज है ना, दोनों एक ही चीज़ है. द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्रीज टूवर्ड द साउथ है ना. साउथ में जाएंगे तो हाइट इंक्रीज होगा, मतलब इधर से इधर जैसे जैसे जा रहे हैं ना तो और हाइट इंक्रीज होगा, मतलब इस तरफ. तब इधर ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स मिलेंगे आपको साउथ की तरफ जाएंगे तो. इसी इधर हाइट कम मिलेगा. जो साउथ इंडियन है वो उनको मालूम होगा कि वहाँ पे पहाड़ी इलाका जो भी है साउथ कर्नाटक या केरला में वो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ ज़्यादा है. दीज हिल्स रेंज कंप्रोमाइज ऑफ मेनी पिक सच एज कलसुबाई ही पिक है ना. ये कलसुबाई पिक देखो है ना, यहाँ पे कलसुबाई पिक है ना. दूसरा अनैमुड़ी पिक के ये इट विल बी हियर अनैमुड़ी पिक्स है ना. पिक हमेशा ट्रायंगुलर शेप में दिया जाता है, देखो ट्रायंगुलर शेप में दिया जाता है. आप इसको केयरफुली अगर देखेंगे ना तो आपको मिलेगा, लेकिन ये इतना केयरफुली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ना 1646 दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको शायद. बहुत केयरफुली देखो है ना. दिस इज द कलसुबाई पिक. और ये देखो यहाँ पे इसका पिक तो देखना और मुश्किल है. तो यहाँ पे 2695 ओके इतना मीटर, मतलब 2-2.5 किलोमीटर ओके 2.5 किलोमीटर इतना हाइटेड एरिया है वो. नेक्स्ट द हाईएस्ट पिक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनुमाडी पिक है ना. वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पिक किधर है 2695 ओके, जो कि इधर अनामली हिल में है. यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, तो ये हमेशा याद करने की चीज़ होगी, इंपॉर्टेंट है ये है ना. अनामुड़ी पिक क्या है, हाईएस्ट है किसमें, वेस्टर्न घाट में. किधर है ये, अनामली हिल में है. और ये किधर है, लोकेशन इधर है तमिलनाडु के पास. वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इज स्टीप वाइल ईस्टर्न स्लोप इज जेंटल. अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना. तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट ओके पहाड़ी इलाका है ना. ये पहाड़ है, कंटिन्यूस पहाड़ ना, से एक पहाड़ दिख रहा है ना, ये पिक है, ये ऊपर क्या बोलेंगे पिक है. एक कंटिन्यूस चला जाएगा तो रेंज बन जाएगा, क्या हुआ कंटिन्यूस दूर तक कई किलोमीटर तक
200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक कंटिन्यूस जा रहा है, ऐसी पहाड़ बना हुआ है, तो क्या हो रहा है, ये आपको रेंज दिखेगा, समझ आ रहा है। जैसे आप मुम्ब्रा के वो साइड में देखो तो आपको पहाड़, कंटिन्यूस पहाड़ जा रहा है ना, तो दैट इज़ द रेंज। और एक ऊंचे वाले को क्या बोलेंगे, पिक बोलेंगे, है ना। एक ऊंचे वाले को पिक, ये एक पिक हो गया, ये एक पिक हो गया, समझिए। अभी देखो ये साइड में क्या हो रहा है, इसका स्लोप थोड़ा देखो ऐसे आराम आराम से, मतलब किसी को इधर से धक्का दे देंगे तो आराम आराम से गिरेगा ना, नहीं धक्का नहीं दे सकते ना, लेकिन इधर दिया तो वो बेचारा सीधा इधर इतना दूर गिरेगा। दिस इज द स्टिप, स्टिप मतलब जो एकदम सीधा है थोड़ा, और ये थोड़ा जेंटल मतलब कि ऐसा स्लोप भी ऐसा है, जेंटल स्लोप में बताया था ना एक्सप्लेन ऐसा है, स्टिप मतलब ऐसा है 90 डिग्री बन रहा हो, क्लियर, 90 डिग्री बन रहा है ऐसा है। तो ये वेस्टर्न साइड में स्टिप स्लोप है ना, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड में स्टिप स्लोप है। वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब अरबियन सी की तरफ, अरबियन सी की तरफ क्या है, स्टिप स्लोप है, और ईस्टर्न साइड में क्या है, जेंटल स्लोप है। और ये डेक्कन प्लेटो हमारा है ना, ऊंचा एरिया हर जगह फैला रहता है, डेक्कन प्लेटो जो हम लोग पढ़े थे। अब ये जो है ना, अब इसके बाद ये यहाँ पे क्या होगा बताओ, क्या होगा, ये समुद्र स्टार्ट होगा, ओके, सी स्टार्ट होगा, है ना, दिस द सी, दिस इज द कोस्टल एरिया। कोकन जो है ना, कोस्टल एरिया को बोलते हैं, जो समुद्र, ओके, सी फेसिंग एरिया को क्या बोलते हैं, मराठी में कोकन बोलते हैं, है ना। तो ये दिस इज द कोकन एंड दिस इज द सी, दिस इज द सी ओवर हियर। तो दिस इज द स्लोप, दिस इज द कोस्टल एरिया, एंड यहाँ पे जो है ये सी होगा, एंड दिस इज ये पूरा वेस्टर्न घाटी कंप्लीट मिला करके, इधर 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 सब मिला करके, ये डेक्कन प्लेटो हमारा, गॉट इट। Now the Western Ghat act as a water divider, okay। अभी देखो वेस्टर्न घाट क्या बता रहा है, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है, सीट केयरफुली, है ना। अभी बारिश होगी, ओके, मानसून का सीज़न आएगा, अभी ये एरिया में बारिश होगी, ये साइड में तो इसका पानी इधर जा रहा है। अब ये साइड में ज़्यादा बारिश हुआ और सपोज स्लोप इधर हुआ, है ना, तो बारिश किधर होगा, इधर होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज यहाँ पे बारिश हुआ तो ये पानी किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, और बारिश इधर हुआ तो पानी इधर जाएगा, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड। बारिश ये साइड में हुआ तो पानी इधर जाएगा, बारिश ये साइड में हुआ तो पानी इधर जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया ना, दो साइड में डिवाइड हो गया ना, इधर ये साइड और ये साइड, ये वेस्टर्न ओके साइड और ये ईस्टर्न साइड, है ना। तो वेस्टर्न साइड का देखो लेंथ कितना छोटा है ना, यहाँ से पानी आएगा, उसके बाद कोकन एरिया, उसके बाद पानी किधर मिल गया, समुद्र में मिल गया, और यहाँ तो बहुत दूर है, ये साइड में जाएगा तो बहुत दूर जाने पड़ेगा, क्योंकि ये से पानी बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रहा है। देखो अभी यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, देखो अभी तो यहाँ पे जो पानी हुआ तो ये कोकन एरिया में पानी गिर जाएगा, तो छोटा डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पे पानी क्या कर रहा है, लंबा डिस्टेंस कवर कर रहा है बे ऑफ बंगाल में गिरने के लिए, है ना। तो ये क्या हो रहा है, बैरियर है ना। अब यहाँ पे जो मेन रिवर है, देखो कौन कौन सा है, ये रिवर गोदावरी रिवर है ना, ये कृष्णा रिवर और ये कावेरी रिवर, गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर, ये 3 फेमस मोस्ट फेमस रिवर इन साउथ इंडिया, है ना। डेक्कन प्लेटो के सबसे 3 फेमस रिवर है। ये बहुत लेंदी हो गया, है ना, ये बहुत लेंदी हो गया। अब ये क्या हो गया, उतना स्लोप तो नहीं है, उतना ज़्यादा स्लोप तो नहीं है, ये क्या जेंटल स्लोप था ना, तो जेंटल स्लोप रहेगा तो पानी स्लो गिरेगा, मतलब देखो पानी में ऐसे गिरो, है ना, पानी ऐसे गिराओ तो पानी स्लो गिरेगा ना, ऐसे पानी गिराओ तो इस पे से ऊपर से पानी गिराओ तो पानी स्लो गिरेगा। अब मैं ऐसे करूँ तो पानी फास्ट गिरेगा ना, है ना। तो इधर से क्या होगा, पानी स्लो गिर रहा है इधर, है ना, स्लो, और इधर से क्योंकि ये स्टिप है तो पानी बहुत फास्ट गिरेगा। अभी इसके वजह से क्या हो रहा है मालूम, कि पानी जब स्लो जा रहा है तो अपने साथ क्या हो रहा है, सैंड पार्टिकल सॉइल को सबको कैरी करते जा रहा है, अब अपने साथ लेके जा रहा है। अब जब यहाँ पे लेके आएगा वो सारे सैंड पार्टिकल ये सबको इधर क्या करेगा, है ना, सॉइल पार्टिकल को क्या करेगा, इधर स्प्रेड कर देगा, ये एरिया में स्प्रेड कर देगा, ये एरिया में स्प्रेड कर देगा, जिसको बोलते हैं अलुवियल सॉइल बोलते हैं, या अलुवियल ओके डिपोजिशन बोलेंगे, ओके, है ना। जो कि रिवर क्या करता है, सॉइल पार्टिकल को लाके डिपॉजिट कर देता है ना। तो क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंस कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, पानी, है ना, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये फटाफट अपने साथ डिजॉल्व कर रहा है, सॉइल पार्टिकल को अपने साथ लेके कैरी कर रहा है। बट यहाँ पे डिस्टेंस तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम है ना, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे उतना वो कैरी नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे पानी का स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे पानी का स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे डेल्टा नहीं होता है। मतलब अब अपने कोकन एरिया में यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता है। डेल्टा में बताया था, व्हाट इज़ द डेल्टा, रिवर माउथ, ओके, रिवर माउथ विच मीट सी, है ना। जब रिवर समुद्र में मिलता है तो डेल्टा बनता है, मतलब एरिया क्या होता है, फैल जाता है वहाँ पे, है ना, स्प्रेड हो जाते हैं।
जब समुद्र में से मिलने से पहले एरिया क्या होता है, वहाँ पे रिवर का स्प्रेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्प्रेड नहीं होता है, यहाँ पे स्प्रेड हो जाता है क्योंकि पानी यहाँ पे स्लो है। ये पूरा एरिया क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, है ना। और ये एरिया क्या होगा, स्प्रेड नहीं होगा, ये क्या होगा, स्ट्रीम बोलते हैं, है ना। पानी एक ये रिवर जैसा दिखेगा हमें, है ना। रिवर क्या हो रहा है, समुद्र में मिल रहा है ऐसा दिखेगा हमें, है ना। और ये रॉकी ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा देखो रॉकी है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हो रहा है कि ये वो स्प्रेड नहीं होता है वहाँ पे, ये साइड में स्प्रेड नहीं होता, तो यहाँ पे डेल्टा नहीं है, यहाँ पे डेल्टा है। अब जब डेल्टा यहाँ पे है ना, मतलब डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब अच्छे पोर्ट नहीं बनते, सी पोर्ट जहाँ पे, है ना, शिप्स ये सब आके, है ना, पोर्ट पे लगते हैं, बंदरगाह पे लगते हैं, क्योंकि क्या होगा, पानी सॉइल भर जाएगा, है ना, गड्ढा करते ना, देखो यहाँ पे है ना, शिप आएगा, सपोज यहाँ पे शिप पानी क्या कर रहा है, शिप यहाँ पे आके लगा, है ना, यहाँ पे आके साइड में लगा, तो उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए ना, ज़्यादा डीप पानी, अगर पानी कम रहेगा तो शिप तो डूब जाएगा ना, है ना, उसको गहराई चाहिए, है ना। अब इसे तो ये गहराई गवर्नमेंट ने करती है, गहराई गवर्नमेंट कर रही है। अब बाद में क्या हो रहा है, पानी यहाँ पे ये पूरे टेबल तक क्या हो रहा है, सॉइल आके जम जा रहा है तब तक, तो क्या हो रहा है, फिर शिप तो डूब जाएगा ना, तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा कि 5 साल में 10 साल में पूरा ये पूरा भर गया, है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमें वो एरिया चाहिए जहाँ पे डिपोजिशनल वर्क नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे पोर्ट अच्छे होते हैं, गुजरात में, मुंबई सब में पोर्ट अच्छे होते हैं, यहाँ पे पोर्ट उतने अच्छे नहीं होते, सी पोर्ट उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिवर क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है अपने सैंड पार्टिकल सॉइल, और पोर्ट क्या को क्या करेगा, है ना, भर देगा, है ना, तो वो गहराई नहीं रहेगा, उसका डीप क्या ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो शिप वहाँ पे आके स्टे नहीं कर सकते। ओके, कंपेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ओके, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कंपेयर करने का, मैं वेस्टर्न घाट के बारे में तो बहुत बताया, ईस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ओके, ये इससे वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ना, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। इंडियन ईस्टर्न घाट रन अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, है ना। ईस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये ईस्टर्न घाट, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट हो गया, और टू साउथ वेस्ट में रन हो रहा है। हाँ, इसके साथ कोस्टल एरिया के साथ साथ चल रहा है, कोस्टल एरिया के साथ साथ चल रहा है। वेस्टर्न घाट ऑल्सो नोन एज शादरी, मैं भी बताया शादरी, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन होता है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है ना। वेस्टर्न कोस्ट क्या सामने में रहेगा, और ईस्टर्न अपना वेस्टर्न घाट इधर से इधर जा रहा है। इट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो का ईस्टर्न बाउंड्री ये बना रहा है, बाउंड्री डेक्कन प्लेटो का, है ना। और ये क्या कर रहा है, वेस्टर्न घाट वेस्टर्न बाउंड्री बना रहा है, इजी। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ बट इट इज़ ब्रोकन, है ना, प्लेस बाय रिवर लाइक गोदावरी कृष्णा, है ना। ऐसे देखो यहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है, फिर बाद में प्लेन हो गया, है ना, फिर बाद में हुआ, तो ये जो हुआ ना गोदावरी रिवर, ये सब क्या रिवर क्या करी, उसके जो सैंड है ना, जो रॉक्स उसको ब्रेक करते चले गए, तो ये एरिया को प्लेन कर दिया, है ना। ये कंटिन्यूस नहीं है, बट लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूस है ना, क्लियर। द कलर इज सेम ना, द हाइटेड एरिया, दिस कलर इज रिप्रेजेंटिंग हाइटेड एरिया, यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया, मतलब ये प्लेन एरिया बन गया, यहाँ पे हाइटेड एरिया, यहाँ पे प्लेन एरिया, ये हाइटेड एरिया क्या बता रहा है, घाट बता रहा है, ये प्लेन एरिया घाट नहीं बता रहा है, तो ये क्या ईस्टर्न घाट क्या ब्रोकन है, टूटा हुआ है, वेस्टर्न घाट क्या कंटिन्यूस है ना, स्ट्रक्चर। कंपेरेटिवली लेस नंबर ऑफ रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न घाट, ये घाट में पानी ज़्यादा रिवर ऑरिजिनेट नहीं करते, मतलब यहाँ पे ऊंचा ज़्यादा है ना, जब बारिश इधर से होती है ना, जब सी से जब विंड ब्लो होती है ना, तो ये इट कम इन सीवर्ड साइड में ज़्यादा होता है, ये पानी इधर ज़्यादा होती है, और यहाँ के से पानी इधर जाती है, इधर पानी ज़्यादा नहीं होती है ना, ये ज़्यादा ऊँची ऊँची पहाड़ नहीं है, तो पानी ज़्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पे रिवर भी ज़्यादा ऑरिजिनेट नहीं कर रहे। ओके, रिवर यहाँ पे ज़्यादा ऑरिजिन नहीं होता है, मतलब रिवर यहाँ से ज़्यादा पैदा नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हैं आप, हम समझने के लिए। यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहे ज़्यादा रिवर, यहाँ से ज़्यादा रिवर स्टार्ट हो रहे, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है, यहाँ पे पानी क्या होता है, स्टक हो जाता है, मानसून का बारिश का पानी, और वो फिर रिवर में पानी जाता है और पानी रिवर बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं है, प्लस यहाँ पे बारिश भी नहीं होता उतना, है ना, तो क्या हो रहा है, ये सूखा रहता है, मतलब उतना ज़्यादा रिवर नहीं होता है यहाँ पे। जो यहाँ पे क्या वेस्टर्न साइड में स्ट्रेट फ्लोइंग रिवर बहुत सारे हैं। क्या नेक्स्ट, द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द ईस्टर्न घाट इज लो, जो 600 मीटर है ना, बट दे आर वाइडर देन वेस्टर्न घाट,
क्या चौड़ा है, ज़्यादा है, वाइडर है ना। लेकिन वेस्टर्न घाट में क्या एवरेज हाइट क्या है 900 to 1000, मतलब 1 किलोमीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर तक क्या हाइटेड है ना। और ये नैरो है, तो ये क्या करता है सी वाटर को, जब मानसून में है ना बारिश इधर से इधर जाएगी पानी, इसको स्टक करता है, रुकता है। लेकिन ये स्टक नहीं कर सकता उतना। हाईएस्ट भी कितने हैं, महेंद्रगिरी, ओके, महेंद्रगिरी ये साइड में देखो, महेंद्रगिरी इधर है, इधर ना, महेंद्रगिरी इधर है ना। आपको क्लियरिटी नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिख रहा ना। द हाईएस्ट पिक क्या है, एनेमुरी, ओके। वाई आर द ईस्टर्न घाट कॉल्ड एज वाटर डिवाइड, है ना। ये मैंने बताया था ईस्टर्न घाट वाटर डिवाइड क्यों कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर है ना पानी इधर फ्लो करे, बहुत सारे रिवर पानी इधर फ्लो करे, है ना। जो रिवर ये साइड में पानी गिरा रहा है तो ये पानी इधर जा रही है, और बहुत सारे जब पानी जो पानी इधर जा रहा है तो वो पानी इधर डिवाइड हो रही है ना। तो इसलिए इसको वाटर डिवाइड बोलते हैं। कोस्टल प्लेन, ओके। नाउ व्हाट इज द कोस्टल प्लेन, द सी फेसिंग एरिया, क्या सी फेसिंग एरिया, सी के पास जो भी एरिया देखो वहाँ पे आता है वो प्लेन एरिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन है ना, ग्रीनरी ज़्यादा है, ग्रीनरी को क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो, इसका हाइट क्या रहेगा 0 to 50, 150 या 0 के आसपास रहेगा सी लेवल, है ना। तब ये प्लेन एरिया है, देखो तो ये सारे 0 मतलब प्लेन एरिया ना, हाइट सेम है इसका, है ना, ये एरिया का, तो इसको प्लेन एरिया बोलते हैं। कोस्टल एरिया ज़्यादा प्लेन होता है, ओके, ज़्यादातर प्लेन होता है, तो ये प्लेन एरिया और ये सारे कोस्टल एरिया आएंगे, ओके, इंडिया के कोस्टल एरिया, इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन अभी गेदर करेंगे। इंडिया इज ब्लेस्ड विथ अ कोस्टल लाइन ऑफ एक्सटेंडिंग 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, ये इंडिया का कोस्टल एरिया है। देखो ये जो कलरफुल में दिखा रहा है, ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग वेस्टर्न कोस्ट, और पिंक कलर इज रिप्रेजेंटिंग ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, है ना। पिंक कलर ईस्टर्न कोस्ट बता रहा है इंडिया का, और ब्लू कलर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बता रहा है। टोटल 7500, दैट इज ह्यूज। इट लाइज इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, ईस्टर्न पार्ट ये पेनिनसुला इंडिया का, और ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में क्या कोस्टल एरिया है। दोनों में क्या है डिसिमिलरिटी, ओके। द कोस्टल पार्ट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दे आर नॉट सिमिलर, है ना, दोनों एक जैसा नहीं है ना। सी क्या हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, देखो जस्ट आप यू कैन ओके सी इट, द बीट, ओके, द बीट इज मोर, चौड़ाई ज़्यादा है, द बीट इज लेस और है ना, चौड़ाई कम है, यस। तो देयर मेनी मोर डिसिमिलरिटी हम लोग देखते हैं अभी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना, अरबियन सी को फेस करते हैं ना, ये साइड में जो भी जो सी वाटर है वो किसका, अरबियन सी का है, ओके। इट इज़ बाय लार्ज कोस्टल, ओके। देखो आप कभी हाजी अली के पास जाओ, देखो कैसा है, पथरीला मिलता है ना, पथरीला एरिया मिलता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे रॉकी होता है, ओके, पहाड़ी पथरीला ज़मीन है ना। तो लेकिन समुद्र में तो लोग देखते हैं कि बहुत बार या फिल्म ये सब में कि समुद्र किनारे क्या होता है, सैंड होता है, ये सब होता है। तो जो सैंड होता है वो आर्टिफिशियल सैंड बिछा है, मतलब जो बॉम्बे में आप देखो बहुत जगह पे सैंड मिलेगा आपको, तो क्या आर्टिफिशियली सैंड खूबसूरत दिखने के लिए, है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया है, कई टन सैंड ला के वहाँ पे बिछा दी ताकि खूबसूरत दिखे, लेकिन वो एक्चुअली ऐसी है, यहाँ पे सैंडी क्या रॉकी है, और वहाँ पे सैंड नहीं है। सैंड कहाँ से आता है, जब रिवर सैंड लेके आएगा तब आएगा ना सैंड, लेकिन यहाँ पे रिवर क्या बहुत शॉर्ट शॉर्ट रिवर है, तो वो क्या करते हैं सैंड नहीं लाते, ओके। लेकिन ईस्टर्न घाट में आप जाएंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, वहाँ पे सैंड रहेगा, ओके। एट प्लेस फर्स्ट टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एज एक्सटेंडेड राइट अप टू द, है ना, जो हाइटेड एरिया है देखो, है ना, जो हाइटेड एरिया वो कभी कभी क्या होगा एकदम समुद्र के पास तक चला गया ना, समुद्र के पास तक चला, थोड़ा दूर के बाद देखो पहाड़ी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे प्लेन ज़्यादा है, यहाँ पे देखो थोड़ा दूर के बाद क्या हो रहा है, माउंटेन स्टार्ट हो गया, है ना, हाइटेड एरिया स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ये बता रहे हैं कि थोड़ा दूर पे हाइटेड एरिया स्टार्ट हो जाता है, प्ले एरिया मतलब जो हाइटेड वेस्टर्न घाट है वो समुद्र के पास तक चला गया एकदम, तो वहाँ पे प्लेन एरिया एकदम नहीं है। इट विथ इज लेस, है ना, इसका चौड़ाई क्या कम है, देखो ये सब तो नैरो एकदम, है ना। यहाँ पे गुजरात में थोड़ा एक्सटेंड है। वेस्टर्न रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट शॉर्ट एंड स्विफ्ट, है ना, छोटे छोटे रिवर है यहाँ पे, बारिश हुआ इधर इधर के पानी इधर चले जा रहे, पहाड़ी इलाका है देखो,
है ना, पानी फ्लो हो रहा है इधर से इधर, है ना। तो ये पहाड़ से ज़्यादा छोटे रिवर है तो क्या हो रहे, वो अपने साथ ज़्यादा सैंड नहीं कैरी कर रहे, और स्विफ्ट मतलब फास्ट, है ना, फास्ट है। रिवर बहुत फास्ट फ्लो होता है, रिवर का पानी बहुत फास्ट फ्लो होता है। और इधर देखो आप दूसरा जगह गंगा गंगा का पानी स्लो स्लो जा रहा है, स्लो स्लो जा रहा है। अब यहाँ का पानी क्या हो रहा है, बहुत फास्ट फ्लो हो रहा है, तो अपने साथ जो भी कचड़े क्या हो रहे हैं फटाफट लेके जाएगा। स्टरीज, दे फॉर्म स्टरीज एंड नॉट डेल्टा, डेल्टा नहीं बनाते, ओके, स्टरीज बनाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिवर का पानी इधर आया, है ना, और ये क्या हो रहा है इधर जाके सी में जाके मिल गया, तो ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ ना। नहीं तो अगर जहाँ पे डेल्टा बनेगा तो पूरा प्लेन हो जाएगा, ये पूरा एरिया क्या होगा, प्लेन हो जाएगा, बहुत दूर तक प्लेन होगा। यहाँ पे ज़्यादा प्लेन नहीं बनाया, तो ये क्या हो गया, इस सीरीज बोलेंगे, रिवर का पानी सी में जाके मर्ज हो गया, है ना। और ये एरिया क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है, मतलब इसके लिए, तो क्योंकि मीठा पानी हो गया, है ना, सॉल्टी वाटर भी और फ्रेश वाटर दोनों है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉन्स या तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फिशेज बहुत मिलते हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या है, फिशिंग का हेवन है, बहुत ज़्यादा फिशिंग होता है यहाँ पे ये एरिया में। मिक्सचर द सॉल्ट ओशन वाटर मिक्स विथ फ्रेश वाटर, है ना, रिजल्टिंग ब्रैकिशिंग वाटर, ओके, दोनों पानी मिक्सअप हो जाता है यहाँ पे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ओके, बॉर्डर द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का यहाँ पे फेस करता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट्स फॉर्मेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर, है ना। ये रिवर देखो, सारे रिवर आ रहे, है ना, आके क्या करे, अपने सैंड अपनी जो भी है सॉइल ये क्या करे, डिपॉजिट कर रहे। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लेन एरिया बन गया, ओके, ये प्लेन एरिया बन गया। ये सारे रिवर देखो, महानदी है, ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, फोर मोर रिवर है यहाँ पे। गंगा का भी यहाँ पे रिवर आता है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का, लेकिन वो प्लेन एरिया बोलते हैं ना, नदर्न इंडियन प्लेन। मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ओके, है ना, ऑरिजिनेट हो रहा है ये सारे रिवर वेस्टर्न घाट से जाके ईस्टर्न घाट में जाके मर्ज हो जा रहे हैं। जेंटल स्लोप है ना, तो सेडिमेंट क्या हो रहा है, ज़्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं यहाँ पे, और लो क्या होता है, लो वेलोसिटी है पानी। देखो यहाँ पे केयरफुली, ये जो एकदम प्लेन एरिया आ रहा है, तो पानी कैसे आएगा, स्लो स्लो आएगा ना, क्योंकि ऊंचा नीचा तो नहीं है। अगर ये बहुत ऊंचा रहता है, ऊंचे से पानी गिरता तो बहुत फोर्स में गिरेगा, लेकिन ये प्लेन एरिया तो पानी क्या आ रहा है, स्लो स्लो में आ रहा है। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा ये बन रहा है, ये दिस इज कॉल्ड डेल्टा, है ना। क्या हो रहा है, पूरा एरिया में स्प्रेड हो गया ना, ये डिपोजिशनल वक्त, ये सैंड्स, तो क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे, रिवर का माउथ है ये, है ना। तो ये स्प्रेड हो गया। अब यहाँ पे शिप तो नहीं बन सकता ना, शिप नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट नहीं बनेगा, पोर्ट बनेगा तो ये सैंड क्या होगा, वहाँ पे जाके भर जाएगा, तो ऊंचा नहीं रहेगा, वो गहरा नहीं रहेगा, उतना गहरा नहीं रहेगा ना, और शिप को आने के लिए गहराई चाहिए, तो इसीलिए ईस्टर्न साइड में उतना पोर्ट नहीं बनते। ठीक है, दिस इज द डेल्टा, ओके, है ना, ये एरिया को डेल्टा बोलते हैं, ये प्लेन एरिया, ओके, यू कैन सी। और यहाँ पे जो वाइट टिश है वो सैंड है, और सैंड इज ब्रॉड बाय, ओके, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर, है ना, ब्रॉड बाय रिवर सैंड ला करके डिपॉजिट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये स्लो स्लो है, रिवर फ्लो हो रहा है। ऐसे इधर डेल्टा फॉन्ड, ओके, डेल्टा ऐसा बनता है, दिस इज द डेल्टा सी एम, है ना। ऐसे से पूरा स्प्रेड हो गया, देखो, है ना, ये पूरा स्प्रेड हो गया, ये रिवर आ रहे हैं ना, रिवर का पूरा डिपोजिशनल हो गया, पानी क्या हो रहा है, ऐसे स्लो स्लो बढ़ के गिर रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, ये पूरा देखो यहाँ पे ऊंचा हो गया, प्लेन हो गया एकदम, और ये डिपोजिशन वर्क हुआ है पे, जो भी सैंड पार्टिकल थे वो आके डिपॉजिट हो गए यहाँ पे। Now we will do island. India has many small and large island, okay, along the coast of mainland, है ना। तो इंडिया के दो आइलैंड है, एक तो ये हमारा वेस्ट में और दूसरा हमारा ईस्ट में, ओके, इस कॉल्ड अंडमान आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार, एंड इस कॉल्ड मालदीव आइलैंड, है ना। मालदीव, सॉरी, लक्षद्वीप, मालदीव क्या अलग कंट्री सेपरेट है, लक्षद्वीप आइलैंड, ओके, है ना। मालदीव क्या एक सेपरेट कंट्री, यहाँ पे ये आइलैंड ही है, मालदीव भी इसके साथ मिक्स है, लेकिन कुछ आइलैंड को क्या बोलते हैं, मालदीव बोलेंगे, कुछ को लक्षद्वीप बोलेंगे। लक्षद्वीप जो है इंडिया में इंक्लूड होता है। दीज आर इंक्लूड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप, ओके, कोस्टल आइलैंड ग्रुप है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, सर देयर टू लार्ज ग्रुप, ओके, है ना। अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में भी आइलैंड है। अरबियन सी में आइलैंड को लक्षद्वीप बोलते हैं, है ना। बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसको क्या बोलेंगे, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, दिस इज अंडमान एंड निकोबार है।
and Andaman and Nicobar Islands here. Is far away from India. Okay. Yeah. Most of the island in the are atoll. Okay, atoll किसको बोलेंगे? रिंग शेप हो रहा है ना, कोरल रीफ. ओके, वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा है ना. और ये लैगून जैसा बन रहा है. लैगून मतलब सॉन्डेड वाटर. देखो ये जो ऐसा बीचेस बन गया है ना, सर्कुलर बन गया यहाँ पे एरिया, ये एरिया में, तो इसको क्या बोलेंगे? एटॉल बोलेंगे, है ना. और ये कोरल रीफ जो होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का, वो ये यहाँ पे डिपॉजिटेड रहता है नीचे इसके बेस में, रिवर सी बेड में. और ये जो सी होता है बहुत क्लियर वाटर होता है, एकदम साफ होता है. आप सी का बेड देख सकते हैं, सी का तह देख सकते हो, उनके सी बेड देख सकते हैं. तो ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही उनके खूबसूरत दिखती है ये, है ना. तो पीपल आर कमिंग हियर टू फॉर मतलब सीनरी और के लिए आते हैं लोग. लैगून किसको? जो पानी से घिरा हो, मतलब जो ज़मीन ओके चार तरफ है ना, उसके बीच क्या है? पानी है, सॉरी पानी जो है चार तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है. मतलब ये साइड में पानी, ये ज़मीन है, इधर पानी घिरी है, तो दिस इज लैगून. ओके, ये लैगून एक्चुअली दिस इज द नॉट द लैगून के एग्जैक्टली ये डिफिनेशन नहीं है. लैगून क्या मीनिंग हुआ कि वाटर सराउंडेड बाय लैंड. ओके, है ना. और कौन सा है? सी वाटर. ओके, सी वाटर इज सराउंडेड बाय लैंड, इसको लैगून बोलेंगे. ये स्मॉल इन दीज आर स्मॉल एक्सटेंट एंड नॉट वेरी, है ना. ये प्लेन होते हैं. ओके, ज़्यादा बहुत बड़े बड़े नहीं होते. सी है ना, प्लेन है. कि ब्यूटीफुल, हाउ मच इट इज़ ब्यूटीफुल. ओके, ठीक, प्लेन है और ज़्यादा हाइटेड नहीं होते थे. कौन सा? वेस्टर्न. ओके, वेस्टर्न कोस्टल एरिया और कोस्टल आइलैंड. ओके, लक्षद्वीप में ऐसे से वेरी ब्यूटीफुल. ओके, अभी अंडमान एंड निकोबार का देखते हैं, है ना. वॉल्केनिक आइलैंड है यहाँ पे ना, वॉल्केनिक आइलैंड है. यहाँ से वॉल्केनो निकलते हैं ऐसे बहुत सारे, है ना. और यहाँ पे पहाड़ी है ज़्यादातर. ओके, माउंटेनस रीजन, हाइटेड एरिया ज़्यादा है यहाँ पे, है ना. हाइट से देखो यहाँ पे पहाड़, ये माउंटेन्स से वॉल्केनो सब निकलते हैं. और ये यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. और ये लेंथी ज़्यादा है, ज़्यादा बड़े. लक्षद्वीप से देखेंगे तो ये बड़े बड़े आइलैंड है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में. तो यहाँ पे हिल्स है ना, ये क्या बेस है ना. और ये हिल्स. ओके, ये हिल्स का सॉरी, ये फुट हिल है. ओके, फुट हिल पे विलेज बसा हुआ है. और यहाँ पे देखो हिल्स स्टार्ट हो रहा है, तो बड़े बड़े हिल्स है यहाँ पे. कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. ओके, लेकिन लक्षद्वीप आइलैंड इज द प्लेन एरिया. अभी यहाँ पे क्या? बैरन आइलैंड. ओके, एक आइलैंड को क्या बोलते हैं? बैरन आइलैंड. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होते रहता है. यहाँ पे देखो, है ना, वॉल्केनो इरप्शन होता है. ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है ना, यहाँ पे हमेशा वॉल्केनिक इरप्शन होते रहता है. इंडिया में और किधर भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे होता है. बैरन आइलैंड एक आइलैंड है जो, है ना, अंडमान एंड निकोबार में है. ना, अंडमान वाले आइलैंड में, है ना, ये हाइटेड एरिया एटॉल नहीं मिलता है. लेकिन निकोबार में क्या एटॉल मिलता है. मतलब देखो चारों तरफ पानी से ऐसे घिरा हुआ कर्व है ना, ऐसे कर्व आए. ओके, पीस ऑफ लैंड है. और ये जो है ये लैगून है. ओके, दिस इज द लैगून पार्ट, द प्लेन एरिया इज सराउंडेड द वाटर. दिस इज द कॉल्ड लैगून एंड दिस आइलैंड इज कॉल्ड एज एटॉल. ओके, ये आइलैंड को एटॉल बोलेंगे. Okay, now Brazil. Okay, we will start Brazil inshallah next time. This is enough today. You have to revise it whatever I taught, and inshallah we will start with the Brazil. Okay, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.